Hello students, good morning. Subject Honeysuckle, Standard 6. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क हमने कंप्लीट किया था। आपको इसकी स्टोरी भी पता है। पैट्रिक्स कौन था? स्कूल जाता था लेकिन उसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको सब टीचर्स डांटते थे, सब फ्रेंड भी उसके ऊपर हंसते थे, बट उसको सडनली एक ऐसा हेल्प जैसा मिल गया, कोई मैजिशियन, तो उसको ऐसा लगा कि वो अपनी सारा वर्क उसके पास कर देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एल्फ सब करेगा था लेकिन एल्फ को कुछ पता नहीं, तो उसको सब गाइड करना पड़ता है। सो जैसे पैट्रिक्स उसको बोलता जाएगा वैसे ही एल्फ करेगा, ऐसा हमने लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, बराबर है। सो अभी मतलब किसी के पास भी वो गाइड करके करवाए, लेकिन करना तो उसको खुद ही था, लास्ट में हमने देखा था। तो अभी हम क्या करेंगे, वर्किंग विद द टैक्स क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, refer to the part of the text whose number is given against the question. This applies to the comprehension questions throughout the book. What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? देखो क्वेश्चन फर्स्ट हमने देखा है क्या है। सो अभी इसका आंसर मैं लिख रही हूँ, आपको भी मेरे साथ लिखते जाना है। आंसर फर्स्ट, Patrick thought that his cat was playing with a doll. In fact, it was a man of the tiny size. Okay. Patrick thought that his cat was playing with a doll. In fact, it was a man of the tiny size. समझ में आ गया फर्स्ट का? आंसर सेकंड में क्या दिया है? Why did the little man grant Patrick a wish? तो सेकंड का आंसर आएगा The little man granted Patrick a wish for saving him from the cat. The little man granted Patrick a wish for saving him from the cat. थर्ड क्या दिया है? What was Patrick's wish? पैट्रिक की विश क्या थी? तो हमको पता ही, हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया, उसमें हमने देखा ही था कि पैट्रिक की विश क्या है। पैट्रिक्स विश was that the elf should do all his homework
till the end of the semester. अब पता था ना, पैट्रिक्स ने बोला था कि मैं तुम्हें उस कैट से बचाऊंगा, बट तुम्हें 35 डेज मेरे लास्ट सेमेस्टर तक तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? सो द लिटिल मैन needed help in all the subject especially in English, maths and human history. The little man needed help in all the subjects, especially in English, maths and human history. Okay? Answer 5th. क्या दिया क्वेश्चन? What did Patrick help him? ये भी हमने देखा था, आपको पता ही होगा. So Patrick bought more and more books and read them for the tiny man he was working harder than ever staying up nights to help the elf complete his homework. Patrick bought more and more books and read them for the tiny man. He was working harder than ever, staying up nights to help the elf complete his homework. And last क्या है? Who do you think did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Give reason for your answer. आपको आंसर देना है इसका. हमें पता ही है कि एल्फ ने सिर्फ राइट किया था, बट गाइड और क्या कैसे करना है वो सब पैट्रिक्स ने कहा था. सो पैट्रिक्स हिमसेल्फ did all his homework the elf
here stands for Patrick's sudden inspiration. Example, inspiration took the form of an imaginary creator. The talks Patrick's had with the elf were his own thought. Patrick himself did all his homework. The elf here stands for Patrick's sudden inspiration. Example, inspiration took the form of an imaginary creature. The talks Patrick had with the elf were his own thoughts. ओके, देख सारे के सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए ना बेटा सबको? ध्यान से देख लो कहीं कुछ छूट ना जाए. Okay, now next, working with the language. Fill in the blanks in the sentence below with the words or phrases from the box. You may not know the meaning of all words. Look such words up in the dictionary or ask your teacher. Some people find household blank a bore, but I like to help at home. क्या है? सब डेली के कोर्सेस. Who stole the diamond is still a blank. क्या होगी? Majesty. This blank we are going to have a class exhibitions semester. Blank the elf began to help Patrick. क्या आएगा? True to his word. Can you blank this word in the dictionary? Look up. जो वो नहीं बोला देखो तो अपनी डिक्शनरी में ये वर्ड दिया है वो वाला. I started early to be on time, but I was blank. There was a traffic jam. क्या आएगा? Out of luck. She says she's got a lot of books, but blank. I think most of them are borrowed. तो इसमें क्या आएगा? Between you and me. C. फर्स्ट में क्या आएगा? कोर्सेस. सेकंड में मैजेस्ट्री. फर्स्ट सेकंड थर्ड में होगा सेमेस्टर. फोर्थ में होगा ट्रू टू हिज वर्ड. 5 में होगा लुकअप. 6 में होगा आउट ऑफ लॉक. एंड 7 में बिटवीन यू एंड मी. ओके, समझ में आ गया ना? क्लियर?
Okay, now next. Use the clues given below to complete this crossword puzzle. puzzle देखो मैंने फिलअप की, आपको देख के फिलअप करनी है. देखो सब स्पेलिंग बन रहे जो उसमें आए थे ना, वही देखो. ये CHORES कोर्सेस, ये देखो. रिचेस देखो, BREECHES SHIEKED. देख लो एक बार. हुआ, देख लिया ना. कंप्लीट. क्लियर हो गया ना सबका. और एक बात वापस रिपीट कर रही हूँ, इसमें जो ये वर्ड्स दिए ना सब, दिख रहे हैं ना, ये सब मीनिंग वाले. ये सब हमें नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं नोटबुक में. ओके, समझ में आया. और ये सब जो क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवाए है वो भी नोटबुक में लिखने हैं. वर्किंग विद द लैंग्वेज वो भी नोटबुक में लिखना है. ये चलेगा, पजल नहीं लिखोगे तो. ओके, बट ये कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्किंग विद द लैंग्वेज, ये सारा का सारा नोटबुक में एकदम अच्छे हैंडराइटिंग से, गुड हैंडराइटिंग से आपको लिखना है. समझ में आ गया. और चैप्टर हो गया है, पर आपको वापस करके इसके रीड करने की प्रैक्टिस करनी है. जिसको इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही हो वो घर पे रोज थोड़ा थोड़ा रीड करो, जिससे स्कूल स्टार्ट हो तो आपका थोड़ा थोड़ा तो अच्छा ही हो जाए. समझ में आया. थोड़ा थोड़ा जैसा भी है वैसा थोड़ा थोड़ा रोज घर पे पढ़ो. मिस्टेक कोई बात नहीं, बट थोड़ा थोड़ा रीडिंग की प्रैक्टिस तो घर पे रखनी ही पड़ेगी, जिससे क्या कोई प्रॉब्लम आगे जाके ना हो आपको. थोड़ा थोड़ा लेकिन पढ़ना तो आना चाहिए. क्लियर हो गया ये चैप्टर में पूरा. कौन एल्सा, कैट क्या थी, पैट्रिक्स क्या था, पैट्रिक्स को क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकला, उसने क्या किया, पूरा चैप्टर हमने पूरा अच्छी तरह से समझ लिया है. ओके, फिर भी बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ वंस अगेन. चैप्टर को वापस एक बार लर्न करो, पढ़ो, जिससे आपको वापस रिपीट हो, समझ में आए. मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया, लेकिन आप लोग भी पढ़ते पढ़ते समझते जाओ कि ये जो लाइन है वो क्या कहना चाह रही है, कौन सा न्यू वर्ड है जो मुझे उसका मीनिंग जानना चाहिए, क्या समझा रहा है, वो सब आपको करना है घर पे. अभी तो फ्री ही हो, कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं है, स्कूल भी नहीं जाना है, तो ये तो एटलीस्ट इतना तो आप लोग कर ही सकते हो. एम आई राइट. ओके, गुड हैंडराइटिंग से लिखना. पहले क्वेश्चन लिखना, उसके नीचे उसका आंसर, वापस सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसके नीचे सेकंड नंबर का आंसर, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, उसके नीचे थर्ड नंबर का आंसर, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, उसके नीचे फोर्थ नंबर का आंसर. ऐसे ही सब लाइन में लिखना है. ओके, सेम इसमें ब्लैंक लिखो, आंसर लिखो, पूरा सेंटेंस लिखो, ब्लैंक का आंसर लिखो, और हेडिंग लगाना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ऐसे डायरेक्टली चालू मत कर देना. समझ में आया. इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स लिखना, तो पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हो. ओके स्टूडेंट्स.
ओके, नेक्स्ट में हम अभी नेक्स्ट पीरियड में वीडियो में हम क्या करेंगे, हाउस अ होम, ये ब्लैंक हम करेंगे। ओके।